Dear candidates, let me give you some basic information regarding your complete SSB test. When I say SSB interviews, SSB stands for Service Selection Board. Service Selection Board is a specialized board which recruits the candidate for armed forces officers entries only. So when I say officers entries, there are three different modules of the test or part of the test. It is for Army, it is for Navy, it is for Indian Air Force. Clear? Anyhow, for Indian Coast Guard, SSB is also conducted. So here we are talking about SSB interviews only, not the examination. हम एग्ज़ाम के बारे में बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ SSB के बारे में बात करेंगे. Even in the veterinary corps, it is also conducted. Even JAG entry, it is also conducted. NCC special entry is also conducted. TS entry also conducted. TGC entry also conducted. So instead of taking the name of examination, we should talk about SSB interviews. Am I clear? Yes, sir. Okay then. तो SSB interviews जब होता है तो हमारे दिमाग में होता है what is SSB interviews. तो सबसे पहले है कि ये ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट का एक बोर्ड है जो कि आपके क्वालिटी के ऊपर ही फोकस करता है. सो व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑन विच SSB इज़ ऑब्सेस्ड समहाउ. इट इज़ 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़. कितने क्वालिटी हैं? 15 ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ है और इसी क्वालिटी के बेस पर जो है आपको चेक किया जाता है. सपोज़ अगर मैं कहूँ कि इन योर कंप्यूटर इफ़ यू टाइप either A or Z, even computer will take only binomial figure that is 0 or 1. Am I right? Yes, sir. Likewise, whatsoever the behave pattern, whatsoever the answer pattern you participate in the test, SSB assessors will take it as a quality only. So it is a qualitative test. आपके पास ये quality होना चाहिए. I have seen many of the students who participate in the SSB test, they feel कि मैंने पूरा एक पेज का एक स्टोरी लिख दिया तो कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएगा. मैंने SRT में इतना कुछ लिख दिया था, कुछ ना कुछ तो नंबर मिल जाएगा. So it is not a quantity test, it is a quality test. Quantity means the amount or volume of answer you write, in that proportion you are giving some marks. But actually without quality you are not provided any marks. Am I clear here? Yes, sir. So ये एक important part है जहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना है. So SSB के इस टेस्ट के बारे में हम लोग आज बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे Day 1 के बारे में जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट. So these are the important tests which are conducted for the SSB interviews: psychology test, GTU test and personality test. And before that each of the candidates will have to participate in the screening test. What is Screening test. screening test? Speak loud. Screening test. Screening test is the first day test. It is the first day test through which even the assessors want to know whether you are eligible to participate in these tests or not. आप कम से कम वाली योग्यता रखते हैं कि नहीं कि आप जो है इन टेस्ट को समझ पाएँ. इस टेस्ट में जो क्वालिटी चाहिए, अगर ये क्वालिटी उनको आपको स्टूडेंट्स को चेक करनी है तो स्क्रीनिंग पास होगा तभी वो क्वालिटी वहाँ डिस्प्ले होगा, अदरवाइज़ वो क्वालिटी नहीं होगा. ठीक है, इसलिए स्क्रीनिंग टेस्ट का मॉड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है. सो अगर मैं इसको प्रिसाइजली कहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ द SSB टेस्ट में जो स्क्रीनिंग होता है उसमें 70% और सम टाइम मोर देन दैट स्टूडेंट डिसक्वालीफाई Day 1 टेस्ट. इवन मेजॉरिटी doesn't know whether they are going to qualify their screening or not. तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट ज़रूरी टेस्ट है कि आप स्क्रीनिंग के बारे में बहुत अच्छे से समझ लीजिए. आज इसके कुछ डाउट्स मैं क्लियर करूंगा और इसके लिए मैंने कुछ आपके लिए इमेजेस को भी लिया हुआ. सबसे पहले मैं उस इमेजेस को बता दे रहा हूँ. सबसे पहले टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा उस पेपर के बारे में हम चेक कर लेंगे कि पेपर कैसे होगा. कुछ इमेजेस हैं जिसके बारे में हम लोग टेस्ट करेंगे, जिसको मैं कुछ हेज़ी पिक्चर हैं, कुछ आपको क्लियर पिक्चर है. यानी कि क्लियर पिक्चर है, हेज़ी इमेजेस हैं और उनके साथ ये टेस्ट का डिस्प्ले होगा. इसके ऊपर मैं बात करूँगा. तो यानी कि हम लोग जब टेस्ट में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं जिसके ऊपर आप क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं लेकिन वो क्लैरिटी नहीं होती. कभी कभी तो स्टूडेंट्स जो है स्टेट पे भी नहीं होते हैं कि क्वेश्चन पूछना भी क्या चाहिए. सो लेट मी गिव यू द बेसिक इन्फॉर्मेशन. SSB स्क्रीनिंग को हम दो पार्ट में सेपरेट करते हैं. फर्स्ट टेस्ट को करते हैं हम इसको OIR. OIR को हम लोग जनरली क्या कहते हैं? रीजनिंग टेस्ट. रीजनिंग टेस्ट हमें ध्यान रखना चाहिए कि OIR का मतलब होता है ऑफिसर्स इंटेलिजेंस रेटिंग, यानी कि आपके पास किस तरह का इंटेलिजेंस है. इसको रेट करने के लिए आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ टेस्ट दिए जाते हैं. नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस वेरीज है ना. अगर क्वेश्चंस का क्वालिटी हार्ड है इसमें तो क्वेश्चंस विल बी लेस, और क्वेश्चंस अगर ईजी हैं तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस विल बी हायर. तो कभी कभी होता है लोग कहते हैं सर कितना क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. देयर इज़ नथिंग लाइक फिक्स. अगर आपके पास मान लेते हैं कि हम लोग जब थे तो हमारे पास 27 क्वेश्चन 28 क्वेश्चन एक पेपर में रहते थे, तो लोग 27 ही क्वेश्चन रहते थे. हमारे पास तो 55 वाले क्वेश्चन आ गए, हमारे 48 क्वेश्चन. अरे 48 थे तो मतलब ईजी वाले क्वेश्चन होंगे ना इसमें. तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आर लेस, इट मीन्स दे आर टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन.
इफ़ नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर मोर इट मीन्स दैट देयर इजी क्वेश्चंस, टाइम कंज्यूम नहीं कर रहा। तो जाहिर सा बात है इसके ऊपर हमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ये बात करना है कि OR का मतलब होता है आपको वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग को बनाना है और एक टाइम फ्रेम में आपको जो है अपनी क्वालिटी को बताना है। इसमें क्या क्या चीज़ को प्रूव करना होता है, स्पीड ऑफ टेकिंग डिसीजन, जल्दी में क्वेश्चंस बना पाएँ, एक्यूरेसी ऑफ डिसीजन यानी कितने क्वेश्चंस बना रहे हो उसमें कितने सही है। जैसे आपने 10 क्वेश्चंस बनाए और 10 में से 10 सही है तो कितने एक्यूरेसी है 100%, और 10 बनाए आपने और 80 क्वेश्चन सही है या 80% सही है तो आपके पास एक्यूरेसी 80% की है। तो यानी हमें ध्यान रखना है कि हमारी एक्यूरेसी बढ़िया होनी चाहिए। अच्छा एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आपने 5 क्वेश्चन बनाए आउट ऑफ 10 और 5 ही क्वेश्चन सही है तो एक्यूरेसी कितना हुआ? क्लियर है? यानी एक्यूरेसी बढ़िया होना चाहिए। तो यानी कि आप 60% की एक्यूरेसी लेके चलें कि अगर आप 60% एंड मोर देन दैट है तो आप बहुत बढ़िया है, वेरी गुड के रेंज में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको फेल नहीं होना। नेक्स्ट, जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स फेल होते हैं, इस टेस्ट का नाम है आपका PP एंड DT। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ PPDT? PPDT स्टैंड्स फॉर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन और डिस्कशन टेस्ट। तो यहाँ पर पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। हमें पिक्चर परसेप्शन का मतलब ही कभी कभी पता नहीं चलता। कभी कभी हमें दिखाया जाए कुछ इमेज, हम बनाते हैं कुछ और इमेज। सपोज़ इस टेस्ट को अगर हम लोग स्टार्टिंग से शुरू करें तो आपके पास एक पेपर दिया जाएगा, ये पेपर है आपका PPDT का पेपर। इसमें कुछ बेसिक आपके इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करना होगा, जैसे कि सिलेक्शन बोर्ड जो कि आप वहीं पर लिखेंगे, बैच नंबर आपको वहीं पर अलॉट किया जाएगा, नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। डेट आपको पता होना चाहिए, UPSC है या नॉन UPSC है। सपोज NDA एंड CDS एग्जामिनेशंस आर देयर, फॉर दैट UPSC रोल नंबर इज गिवन, और उनको छोड़ के बाकी एग्जामिनेशन कौन से हैं? नॉन UPSC। 4 और 5 डिजिट के आपके नंबर्स होंगे जो आपको लिखने होंगे, यहाँ पर आपको आपके एडमिट कार्ड में दिया जाएगा। और यहाँ पर आपका चेस्ट नंबर है तो प्रेजेंटली यू हैव द चेस्ट नंबर, आई थिंक यू हैव द चेस्ट नंबर, ठीक है। तो आपको आपकी चेस्ट नंबर के साथ आपकी पहचान को यहाँ पर लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विथ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टेस्ट। इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको आपका एसेसर चाहता है कि आपकी परसेप्शन में एक्यूरेसी हो, जो भी देखें उसका एक्यूरेसी आपको समझ में आए। तो इसके लिए एक बॉक्स दिया गया है और एक्शन और स्टोरी करके 2 सेक्शंस दिए। इट सीम्स वेरी सिंपल बट एक्चुअली द टेक्निकल अप्रोच विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द टेस्ट इज़ वेरी क्रूशियल, यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। तो अब हमें बॉक्स में क्या करना है और एक्शन और स्टोरी में क्या लिखना है। तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ इमेजेस को ले लेते हैं। अब हमें कितने कैरेक्टर दिख रहे हैं यहाँ पर? ध्यान से देखेंगे, 2 कैरेक्टर्स को देखा है तो अब हमारे पास 2 तरह के परसेप्शंस बनेंगे। एक होगा परसेप्शन जो होगा आइडेंटिफाइड और एक होगा इन्फॉर्मेटिव। लिसन, आई स्टॉप माई वर्ड, आई जस्ट एम्फसाइज माई वर्ड। एक होगा आइडेंटिफाइड, एक होगा इन्फॉर्मेटिव। तो आप में से कितने लोगों को सिर्फ 2 कैरेक्टर दिखे? कितने लोगों को दिखे? ओके देन। और 2 कैरेक्टर के साथ और क्या दिखा? 2 कैरेक्टर के साथ अगर आपको स्कूटर दिखा, आपको रोड दिखा और सराउंडिंग में जंगल दिखा या कोई भी दिखा, बुशेस दिखे आपको, तो वो आपका जो है ये आइडेंटिफाइड है। और सिर्फ आपको 2 कैरेक्टर दिखे और कुछ नहीं बोला आपने तो ये इन्फॉर्मेटिव है। तो ऑलवेज रिमेंबर PPDT का ऑब्जेक्टिव जो है आपका आइडेंटिफाइड होना चाहिए, वो कैरेक्टर कहाँ पर है, क्या कर रहा है। ये नहीं कि आपने 2 कैरेक्टर के ऊपर स्टोरी बना दिया। आई हैव सीन मेनी ऑफ द स्टूडेंट यूज टू राइट 2 कैरेक्टर स्कूटर पर है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि स्कूटर आपका शोरूम में है कि रोड पर है कि कहाँ पर है, कि 2 कैरेक्टर जो है आपके कुछ बात कर रहे हैं और वो बात किस लिए कर रहे हैं? एग्ज़ाम में उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हुआ और इस बार अच्छा परफॉर्म करेंगे, दोनों ने मिलकर जो डिसाइड किया ग्रुप स्टडी करें एंड दे फाइनली पास द एग्ज़ाम। उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि जो इमेज दिखाया गया उससे कुछ स्टोरी को रिलेट करना है। सो यू शुड बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, आइडेंटिफाइड। आपको स्टोरी में वो स्कूटर को मैच करना है, मेल और फीमेल कैरेक्टर को मैच करना है, रोड के ऊपर किस तरह का कन्वर्सेशन हो सकता है उसके ऊपर बात करना है। आप मुझे बताइए क्या कोई सीरियस टॉकिंग जो है स्कूटर के पास रोड के किनारे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। अगर आपने कोई ऐसा सीरियस कन्वर्सेशन करके सोचा हुआ है तो जाहिर सा बात है कि फिर आपके पास क्लासरूम है, आपके पास बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर सीरियस कन्वर्सेशन होती है। तो आपने एक ऐसा प्लेस चुना है जहाँ पर इस तरह का डायलॉग्स नहीं होना चाहिए था। यानी कि आपने स्टोरी जो बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ बताने के लिए बनाई है, लेकिन आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा। हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि इस जगह पर इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं।
तो कहने का मतलब है कि दो मॉड्यूल होना चाहिए कि हम जब इमेज को देखें तो हमें पता चलना चाहिए कि जो भी कैरेक्टर्स है उसकी सराउंडिंग कैसी, उनके साथ हमारा कैरेक्टर्स मैच होना चाहिए और जो भी एक्शन है वो भी मैच होना चाहिए। तो दो कैरेक्टर अगर रोड पे हैं तो हमें पढ़ाई की स्टोरी लिखनी चाहिए कि स्पोर्ट्स की लिखनी चाहिए। जाहिर सी बात है ना ये पढ़ाई दिख रही है ना ही स्पोर्ट्स दिख रहा है, तो ऐसी स्टोरी को अवॉइड करना, कुछ ऐसी बातें लिखनी है कि जो उस स्टोरी के साथ उस इमेज के साथ मैच करता है। क्लियर है? और नहीं लिखा आपने तो स्टोरी कहाँ पर जाएगी? इन्फॉर्मेटिव में जाएगी। जबकि हमें क्या करना है? आइडेंटिफाइड करना। आपका कैरेक्टर आइडेंटिफाइड हो जाए, इसलिए हमें ऐसा बनाना। तो कोई बात नहीं, हमने दो कैरेक्टर को आइडेंटिफाइड किया है और दो कैरेक्टर में हमारे पास एक सर्कल हमने ऐसा बनाया और दूसरा सर्कल दूसरा है। अब हमें दो कैरेक्टर्स अगर डिस्प्लेड हुए हैं या हमने परसीव किए हैं, व्हाट डू मीन बाय परसीव? परसीव का वर्ड क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि इस टेस्ट में दो तरह के इमेजेस यूज़ किए जाते हैं। एक होता है हेजी पिक्चर, हेजी का मतलब होता है ब्लर, जो धुंधला होता है, दिखता नहीं, और एक होता है क्लियर इमेज जिसमें कि हम देखकर कैरेक्टर को पता कर सकते हैं। तो जब हमारे पास इमेज हेजी होता है तो हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम कितने कैरेक्टर को ढूंढ पा रहे हैं। इसलिए हमारा परसेप्शन का मतलब है कि आई परसीव, और ये परसेप्शन वेरी करता है। आपने दो देखे हैं, किसी ने चार भी देखे होंगे, इसलिए परसेप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर हमने दो कैरेक्टर को ही दिखाए थे, तो यहाँ पर हमें इस तरह से हमें इस बॉक्स को फिलअप करना है। कुछ ऐसे स्टोरीज़ भी बनाते हैं स्टूडेंट्स जिसमें कुछ एरर्स होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, ये पूरा बॉक्स खाली है लेकिन अपने कैरेक्टर को वहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। ये साइकोलॉजिकली प्रूव करता है कि आप जो है थोड़े से शाई हैं और अपनी क्वालिटी को पूरी तरह से रिवील नहीं करना चाहते। क्यों भाई? इतने खाली जगह पर आपने एक कोने में अपने कैरेक्टर को रखा है इसमें, जबकि स्पेस तो पूरा दिया हुआ था। तो इट इज़ अ रॉन्ग डिसीजन, डोंट डू दिस। अब हमें क्या करना है? अब हम ऐसे करके पूरे सेंटर में इसको बनाएं। जब हम 2 या 5 कैरेक्टर देख रहे हो तो बाकी कैरेक्टर सिमिलर साइज़ के सर्कल होंगे और एक कैरेक्टर हमारा बड़ा होगा जो कि हमारा प्रोटागोनिस्ट या हमारे लीडिंग कैरेक्टर को बताएगा। व्हाट डू मीन बाय लीडिंग कैरेक्टर? जिसको हम नॉर्मली कहते हैं हीरो। हीरो को हम प्रोटागोनिस्ट भी कहते हैं और लीडिंग कैरेक्टर भी कहते हैं। इट इज़ अप टू यू व्हाट टाइप ऑफ वर्ड यू वुड लाइक टू यूज़ इन द स्टोरी पार्ट। तो मैंने यहाँ पर देखा कि 2 कैरेक्टर मुझे परसीव हुए और इसको मैंने 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ ऐड करना है। हमें दोनों के साथ 3 बेसिक इन्फॉर्मेशन को ऐड करना है। लीडिंग कैरेक्टर जो भी होगा हमारा, वो हमारे एज के अकॉर्डिंग होना ही चाहिए। सो वन ऑफ यू हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन, सो क्या हमें एज मैच करना चाहिए कि नहीं? येस, ऑब्वियसली मैच करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सिलेक्शन आपका हो रहा है, हमारे अलग अलग एज में एक्शन की पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट होती है। आप मुझे बताइए कि व्हेन यू आर इन 8th स्टैंडर्ड और मैट्रिकुलेशन, सो डू यू फील एट प्रेजेंट दैट यू कुड हैव डन द सेम अप्रोच दैट प्रेजेंटली यू हैव? क्या अभी जो काम कर सकते हैं उस समय कर सकते थे? क्या नहीं कर सकते? तो कहने का मतलब है कि आपका साइकोलॉजिस्ट अभी के समय की क्वालिटी चेक कर रहा है। तो अभी के समय आपका एज ही तो सेम है ना, आप तो वही हैं, नाम तो वही है आपका, एज ही डिफरेंस है। क्या आज से 20 साल बाद या 10 साल बाद अभी की सोच वेरी चेंज होगी कि वही रहेगी? चेंज हो जाएगी। आपकी फिटनेस भी चेंज हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है हमें ध्यान रखना है कि हमारा कैरेक्टर जो है अभी के एज में होना चाहिए। अभी के एज का मतलब क्या है? एग्जामिनेशन किसकी डिमांड करता है? आपकी 25 साल की एज की डिमांड करता है। आप इसमें 3 तरह के एजम्पशंस बना सकते हैं: नियरेस्ट पास्ट, नियरेस्ट फ्यूचर एंड प्रेजेंट। सपोज यू आर 20 ईयर्स ऑफ एज, तो नियरेस्ट पास्ट आपका 18 ईयर्स हो सकता है और नियरेस्ट फ्यूचर आपका 20 to 24 ईयर्स हो सकता है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमें प्रेजेंट स्टोरी बनानी है तो हमें लिखना चाहिए कि 20 साल। मैं 20 साल एक नॉर्मल एज ले रहा हूँ। फॉर CDS एग्जामिनेशन मान के चलें कि 24 साल में भी लड़के सेलेक्ट होते हैं, 20 साल मैंने नॉर्मल एज लिया। और अगर मान के चलें कि फ्यूचरिस्टिक स्टोरी बना रहे हैं, अगर फौजी कोई दिख रहा है और आप उसको कैप्टन या मेजर बनाना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उसको कैप्टन ही बनाना चाहिए, क्योंकि नियरेस्ट फ्यूचर आपका कैप्टन होगा, मेजर नहीं होगा। Am I clear? आई हैव सीन सम स्टूडेंट्स यूज टू राइट कर्नल रैंक, ब्रिगेडियर रैंक। क्यों भाई? क्योंकि उनको लगता है कि वो हाई ऑफिसर बनाने से उनकी डिग्निटी बढ़ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका नियरेस्ट एज होना चाहिए फ्यूचरिस्टिक डिमांड के लिए। तो हमने इसको अगर मान लेते हैं कि हमारा एज 20 है तो हमें फ्यूचर में बनाना है, तो इसको हमें 24 तक कर सकते हैं। हीरो या प्रोटैगनिस्ट का एज हमेशा पॉजिटिव होगा, यानी कि हमेशा मूड कैसा होगा, कैसा काम करना चाहता है, कुछ पॉजिटिव। सो एक्चुअली व्हेन वी से पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव का मतलब होता है डू समथिंग विच इज़ गुड फॉर अदर्स। कुछ ऐसा काम जो सबके लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा हो। अपने लिए तो ऑब्वियसली अच्छा हो। यहाँ पर बात हो रही है सबके लिए अच्छा हो और अपने लिए लास्ट में, ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना है। आर्म फोर्सेस का एक मोटो है जिसके ऊपर आर्म फोर्सेस बिलीव करता है।
सर्व द कंट्री फर्स्ट, देन आफ्टर द मैन यू कमांड एंड देन यू कम। हमेशा ध्यान रखना है। तो कोई भी ऐसी स्टोरी को क्रिएट करिए जिससे दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, देश को फ़ायदा हो रहा है, ऐसा नहीं कि आपको अकेले को फ़ायदा हो रहा है। सपोज यू राइट अ स्टोरी इन विच यू पास योर IIT एग्जामिनेशन, तो इसका बेनिफिशियरी कौन है? आप हैं। तो क्या आप हीरो बन सकते हैं? क्या नहीं बने। आप कोई ऐसी स्टोरी बनाए जिससे कि आपके एक्शन से आपके सराउंडिंग को फ़ायदा हुआ। सपोज यू आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड सम ऑफ योर फ्रेंड्स आर वीक एट मैथमेटिक्स, तो while preparing for JEE examination you also supported them and with your help they also passed JEE examination। अब आपने तो पास किया ही, लेकिन आपके कारण उन्होंने भी पास कर लिया। अब यहाँ पर हीरोइज्म आ रही है। तो कभी कभी क्या होता है, स्टूडेंट कहते हैं सर हम अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहे, हम ज़बरदस्ती का हीरो खुद को कैसे बना सकते। आप वही काम करिए, लेकिन वो काम के साथ बेनिफिशियरी कोई और होना चाहिए। आप अपने कैरेक्टर को मान लीजिए IAS बनाना चाहते हैं, तो IAS के एग्ज़ाम को पास करने के बाद उसका बेनिफिशियरी कौन है? वो खुद हुआ। तो आप उसको बनाइए कि वो IAS बनना इसलिए चाहता है क्योंकि वो ऐसे परिवार से आता है, ऐसे ब्लॉक से आता है, ऐसे रीजन से आता है जहाँ पर नीड बहुत ज़्यादा है लोगों के पास जो है कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है, लिटरेसी की प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। एंड एक्चुअली ही वांटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम बाय बिकमिंग एन IAS ऑफिसर। तो एक्चुअली में आपके IAS बनने का ऑब्जेक्टिव आप नहीं है, आपकी सराउंडिंग बने आप ही हैं, लेकिन आपने सर्विसेज के लिए चुना है। मान लेते हैं आप कहते हैं मैं फ़ौजी बनना चाहता हूँ, फ़ौजी बनना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हैं आप? सर मेरे को यूनिफॉर्म बड़ा पसंद है। तो नीड किसकी हो गई? मेरी होगी। लेकिन आपने कहा सर आई वांट टू सर्व माय कंट्री इन यूनिफॉर्म, तो आपका हीरोइज्म आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपका हीरो अपने लिए नहीं काम कर रहा। तो हमें ध्यान रखना है इसमें कि हमारा जो भी पॉजिटिव व्यू होगा उसका डिस्प्ले हमेशा ही अदर्स के लिए होना चाहिए, खुद के लिए नहीं होना चाहिए। तो एज हमारे पास हो गया, मूड हो गया, और सेक्स आपका मेल और फीमेल दोनों में से कोई भी हो सकता। बट इफ़ 2 मेल्स आर गिवन एंड यू आर फ्रॉम मेल जेंडर, देन योर चॉइस ऑप्शन शुड बी अ मेल ओनली। ठीक है, अगर आप मेल और फीमेल 2 कैरेक्टर्स को देखते हैं और आपके पास आप अगर मेल हैं और मेल फीमेल दोनों को देख रहे हैं, तो आपके पास एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे ये फीमेल है, एक मेल है, और आप एज ए मेल है, तो आपको दोनों में से अगर एज सिमिलर दिख रहा है तो आपको किसको मानना चाहिए? क्योंकि आप मेल हैं तो जाहिर से बात है आपकी साइकोलॉजी मेल के अकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। एम आई राइट और नॉट? क्लियर है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए अगर दोनों ही कैरेक्टर का एज सिमिलर है और हमें अगर सेक्स या जेंडर को चुनना है तो वी शुड गो फॉर द सिमिलर जेंडर, दैट इज़ मेल। और कोई फीमेल होगी तो क्या करना है उसको? फीमेल कैरेक्टर की तरफ वो जा सकती है। आइदर इट इज़ द चॉइस ऑफ योर्स, ये आपका चॉइस होगा कि आप इसको किसको चुनना चाहते हैं। इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट क्वालिटी, सो क्वालिटी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन द जेंडर ऑफ सब्जेक्ट, है ना। वो क्वालिटी किसी पे डिपेंड नहीं करता। फीमेल भी आर्म फोर्सेस में ऑफिसर्स बनती हैं, मेल भी बनते हैं। इट इज़ द क्वालिटी बेस्ड टेस्ट। सो यहाँ पर जेंडर के ऊपर ज़्यादा हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अब हमें ध्यान रखना हमें दूसरा कैरेक्टर किसको देना है। तो दूसरा कैरेक्टर जो सब्जेक्ट के साथ लिंक्ड है या एसोसिएटेड है, जिसका स्टोरी में इंट्रोडक्शन होगा, उसके बारे में बात करें। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है अगर आपने एज ए मेल को परसीव किया है तो यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर तो फीमेल है हमारे पास, और दूसरा कैरेक्टर भी मान लेते हैं कि ये 20-22 साल जो भी है एज इसका, और ये भी पॉजिटिव है। तो सबसे पहले हमें बॉक्स फिलअप करने के लिए इस तरह से देखना है। सो वाई शुड वी से पॉजिटिव? पॉजिटिव क्यों देखें हम इसमें? हीरो अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो वो एक्शन पॉजिटिव कैसे लेगा? एंड विदाउट राइटिंग पॉजिटिव एक्शन हाउ कुड यू से दैट ही इज़ हीरो? ध्यान से सुनिएगा जरा। अगर आपका हीरो पॉजिटिव नहीं है, आप कह रहे हैं नेगेटिव है, तो फिर वो हीरो कैसे हुआ? क्योंकि हीरो मीन्स द सब्जेक्ट हु डज समथिंग फॉर अदर्स, गुड फॉर अदर्स। तो जाहिर सी बात है इसको पॉजिटिव बनाना ज़रूरी। डो नॉट राइट नेगेटिव मूड फॉर हीरो। अब यहाँ पर हम एक्शन में जब आते हैं तो एक्शन में हमारे पास एक प्रिसाइज स्ट्रक्चर होना चाहिए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन। तो यहाँ पर हम क्या लिखना चाहिए? अगर आपका हीरो ये मेल है तो आपका एक्शन मेल के तरफ से होना चाहिए। आप बॉय, अब यहाँ पर लिखना है खुद को बॉय मानते हैं, मैन मानते हैं, इट इज़ अप टू यू। अब बॉय क्या किया बॉय ने? इमेज को दोबारा देखेंगे, आइडेंटिफाइड करेंगे। आप देख रहे हैं इसमें एक आइसोलेटेड प्लेस है, मतलब कोई नहीं दिख रहा है आपको, घर भी नहीं दिख रहा है इसमें, और एक बॉय है एक गर्ल के साथ बात कर रहा है। तो बात करने के लिए तो नहीं रुका होगा, तो जाहिर सी बात है हीरोइज्म को प्रोड्यूस करने के लिए क्या करना होगा हमें? तो अ बॉय एक्सटेंडेड हेल्प टू अ गर्ल
स्टैंडिंग द रोड साइड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अब हमने एक्शन से ही बता दिया है कि एक लड़का जो है एक गर्ल को अपना हेल्प सपोर्ट एक्सटेंड कर रहा है कि चलो मैं कहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि ये जगह जो है आपको लिफ्ट नहीं मिलेगा, वो बात की बात। लेकिन स्टार्टिंग में हमें देखा कि एक लड़का लड़की बात कर रहा है तो इसमें हो सकता है। अब जो है अब हमें कुछ ऐसा बात नहीं बोलना है कि जो कि पहले से ही बिना जानकारी के हम स्टोरी लिख ही नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कि ये कैरेक्टर जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि पहचाने हुए अननोन है, दैट इज़ अप टू योर परसेप्शन। आपका परसेप्शन है, क्या कहता है, दैट इज़ अप टू योर्स। लेकिन अगर हमें इसमें हीरोइज्म प्रोड्यूस करना है तो जाहिर सा बात है, अभी हम लोग किसकी तरीके से देख रहे हैं, बॉय की तरफ से, गर्ल की तरफ से? ओके देन, सो बीइंग अ मेल वी आर गोइंग टू राइट समथिंग फ्रॉम बॉय साइड। क्लियर? फीमेल साइड से भी बना सकते हैं लेकिन अभी हम मेल साइड से बात कर रहे हैं। तो सपोज़ यहाँ पर बॉय जो है कॉलेज स्टूडेंट है और कॉलेज जा रहा था, एक एग्जाम्पल बताया मैंने, और कॉलेज का एग्जामिनेशन है, क्योंकि आपके एज में तो कॉलेज में रहते हैं ना बच्चे, कॉलेज का एग्जामिनेशन है और उस दिन क्या है, बस का स्ट्राइक हो गया। बस का स्ट्राइक हो गया जिसके कारण कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। एंड ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज जूनियर, और जो भी सीनियर है या क्लासमेट है या कॉलेज मेट है, कुछ भी है, तो शी वॉज स्टैंडिंग एंड एक्चुअली शी वॉज ऑल्सो गेटिंग लेट बिकॉज ऑफ स्ट्राइक ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। तो वो गया, खड़े होकर उसने बताया बिकॉज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन स्ट्राइक और स्ट्राइक, सो व्हीकल्स आर नॉट रनिंग टुडे, एंड इफ़ यू think or if you feel that it is high time to take help from my side, so you can come and sit. I'm also going towards my college and we can participate in the examination. इस तरीके से इसने support extend किया and girl is very thankful and the boy dropped her within the time frame and actually both of them appeared in the examination in the correct period of time, whatsoever the time is demanded. तो हमने यहाँ पर अब जो मैंने आपको स्टोरी बनाई, आप मुझे सिर्फ एक बात बताइए, क्या आप इस स्टोरी में सुनने के बाद आपका दिमाग इस इमेज से कहीं पर दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हुआ क्या? यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव कहाँ पर है? ये इमेज है। इस इमेज तक हम रहे क्योंकि कन्वर्सेशन में ही एक्शन है, कन्वर्सेशन में ही एक्शन है, ये हेल्प हो रहा है, यहीं पर हेल्प हो रहा है। लेकिन परेशानी कब हो जाती है? परेशानी तब होती है कि जब जो है गर्ल जो है बॉय को कहती है इसमें कि हमारे एग्जामिनेशन में नंबर ख़राब आ गए, इस बार हम एक काम करते हैं, ग्रुप स्टडी करते हैं सो दैट वी कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ आवर्स। फिर दोनों ने मिलकर जो है अपने अदर फ्रेंड्स के साथ ग्रुप स्टडी किया, फिर उनके बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई और एग्ज़ाम में उन्होंने बहुत अच्छा मार्क्स लिया। अब बताइए ये सारे चीज़ों में इमेज वो दिख रहा था क्या जो अभी दिख रहा है मेरे को? नहीं दिख रहा। सो दैट डू नॉट राइट एनी टाइप ऑफ स्टोरी इन विच द गिवन इमेज इज़ नॉट द प्राइमरी इमेज। जो इमेज दिखा रहे हैं अगर वो इस इमेज स्टोरी का प्राइमरी इमेज नहीं है इसमें, तो जाहिर सा बात है कि आपका स्टोरी फेक है, आपका स्टोरी करेक्ट नहीं है, क्योंकि आपका परसेप्शन जो है वो पहले से प्री एग्जिस्टेड है। कहाँ की तरफ एग्जिस्टेड है? एग्जामिनेशन के। और आपका साइकोलॉजिस्ट चाहता है, मैंने चैलेंज ये दिया है आपको, और आपने चैलेंज कौन सा लिया? एग्ज़ाम के ग्रुप स्टडी को लिया। क्या इस इमेज से ग्रुप स्टडी को कोरिलेट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, तो स्टोरी गलत हो गई ना। आपने कहा कि सर एक्चुअली मैंने तो पॉजिटिव लिखा है ना, पास होने की बात लिखी। अरे मैंने तो कहा ना पास होने की बात सही है, लेकिन मैंने ये चैलेंज तो दिया नहीं ना आपको। सो आपका साइकोलॉजिस्ट आपको कुछ चैलेंजेस देना चाहता है और उस चैलेंजेस के अकॉर्डिंग आपसे चाहता है कुछ आप स्टोरी लिखिए जो आपकी साइमल्टेनियसली आपको प्रोमोट करती हो, स्टिमुलेट करती हो। ऐसा नहीं कि कोई भी पहले से स्टोरी पढ़ लिया आपने और आपने उसकी जगह पर स्टोरी को कट एंड पेस्ट कर दिया, सो इट बिकम्स रॉन्ग स्टोरी। तो यहाँ पर अभी हमें स्टोरी जब लिखना होता है तो हमें स्टोरी कैसे लिखना होता है? तो स्टोरी लिखने के लिए एक बेसिक फार्मूला जो कि सभी को मैंने बताया। सभी को सबसे पहले हीरो को थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव देना है इसको, जिससे कि हीरो पहचाना जा सके। हीरो में आपको पहचानने के लिए क्या करना होगा? हीरो का आपको नेम देना होगा, नेम, एज देना होगा, देन ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन के साथ डेस्टिनेशन। अगर आप इतनी सारी चीज़ें हीरो के बारे में बता दें तो आपका हीरो इन्फॉर्मेटिव की जगह पर आइडेंटिफाइड हो जाए। सो लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल। अगर मैं कहूँ राम वॉज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, अब राम को पता कर सकते हैं क्या?
अगर मैं आपसे कहूँ राम वॉज ए कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, कैन यू फाइंड राम? राम ढूंढ सकते हैं क्या अभी? तो इसको कहते हैं इन्फॉर्मेटिव। अब मैंने कहा राम वॉज अ सेकेंड ईयर फिजिक्स ऑनर्स स्टूडेंट ऑफ पटना यूनिवर्सिटी। अब राम ढूंढेंगे क्या? मिल जाएगा, तो इसको कहेंगे आइडेंटिफाइड। तो कहने का मतलब आपका हीरो अगर आइडेंटिफाइड हो रहा है तो यानी कि आप स्टोरी जेन्युइनली लिख रहे हैं या लिख सकेंगे। अगर आपने हीरो में अपने स्टोरी में कैरेक्टर को वैसा प्रोजेक्ट किया जिसमें कि आपका हीरो आइडेंटिफाइड नहीं हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव में जा रहा है, तो स्टोरी के फेक होने के चांसेस ज़्यादा है। अब हमने सबसे पहले हीरो को इंट्रोड्यूस कर लिया। क्या इंट्रोड्यूस कर पा रहे हैं हम लोग? हाँ कि नहीं? तो हीरो को हमने इंट्रोड्यूस कर लिया है। हीरो को लिखने के बाद आप क्या लिखें आगे? हीरो के पास एक नीड होनी चाहिए, कुछ ना कुछ काम के लिए उसके पास होना चाहिए। बिकॉज विदाउट वर्किंग एनीथिंग गुड यू कैन नॉट बी द हीरो। आप कुछ ऐसा काम अगर नहीं करें जिससे कि पॉजिटिव हो, तब तक आप हीरो कैसे बनेंगे? तो इसलिए आपके पास एक नीड होनी चाहिए। नीड होने के बाद उस नीड को पूरा करने के लिए चुनौती होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं चैलेंज। चैलेंज को हम लोग ऑब्स्टिकल भी कहते हैं। ऑब्स्टिकल, बाधा। जैसे कि मान लीजिए इफ़ यू वांट टू पास आईआईटी एग्जामिनेशन, आईएएस एग्जामिनेशन, एसएसबी इंटरव्यूज़, तो बाय जस्ट विलिंग यू कैन नॉट पास द एग्जामिनेशन। आपको बाधा मिलेगी। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं चलूँ तो उसके लिए क्या ज़रूरी है? फ्रिक्शन ज़रूरी है कि नहीं? अगर आपको हैंडपम्प से पानी चाहिए तो आप आराम से निकालेंगे तो पानी आएगा, थोड़ा टफ होगा तो पानी आएगा। कुएं से पानी निकालेंगे तो बाल्टी अगर हल्की होगी, रस्सी हल्का होगा तो पानी आएगा, भारी होगी तो पानी आएगा। तो इट मीन्स दैट चैलेंज और ऑब्स्टिकल इज़ अ काइंड ऑफ क्वालिटी दैट यू आर राइटिंग, क्योंकि वही आपके हीरो का क्वालिटी है जो आपको प्रोड्यूस करना है। आपका हीरो आईएएस बनना चाहता है तो नीड आईएएस एग्ज़ाम हुआ एंड ही बिकम आईएएस एग्जामिनेशन, तो चैलेंज माइनस हो गया और स्टोरी में हीरोइज्म ख़त्म। तो आपका हीरो आईएएस बनना चाहता है लेकिन वो बड़ा पुअर बैकग्राउंड से है, उसके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, फिर उसने मैनेज किया, ऐसा किया वैसा किया, तो ये चैलेंज ऑब्स्टिकल है। और इसको पूरा करने के बाद लास्ट का रिजल्ट क्या होगा? पॉजिटिव होना चाहिए। दैट इज़ द स्टोरी। तो हमें स्टोरी लिखने के समय ध्यान रखना चाहिए, हीरो होना चाहिए, नीड होना चाहिए, चैलेंज होना चाहिए और रिजल्ट होना चाहिए। और रिजल्ट कैसा होना चाहिए? और हमेशा ध्यान रखें किसी भी कंडीशन में नेवर किल योर हीरो। हीरो को कभी भी मारना नहीं है आपको। मान लीजिए कि आपका हीरो अगर फौजी है और परमवीर चक्र मिल गया लेकिन मर गया, तो वो नहीं एक्सेप्ट होगा। डू नॉट थिंक दैट हीरो इज़ गोइंग टू बी डाइड एट द एंड ऑफ स्टोरी। हीरो को किसी भी कंडीशन पे मारना नहीं। नंबर 1, डू नॉट राइट एनीथिंग रॉन्ग अबाउट हीरो। आप हीरो को स्टार्टिंग में नहीं बता सकते ही वॉज वेरी वीक इन एकेडमिक्स, ऐसा कोई नेगेटिव वर्ड हीरो के साथ नहीं लिखना है। एम आई क्लियर? हीरो के बारे में कैसी कोई जानकारी जो कि हीरोइज्म को कॉम्प्रोमाइज़ कराती है नहीं लिखना। जैसे कि इनिशियली ही वॉज वेरी वीक इन स्टडीज़ एंड ही फेल्ड इन फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन बट बिकॉज ऑफ हिज कंसिस्टेंसी ही पास द एग्ज़ाम। ये गलत हो जाए। क्यों भाई? क्योंकि आपने पहले एकेडमिकली कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। सो डोंट डू दिस। एम आई क्लियर? तो हमने यहाँ पर स्टोरी के एक रीज़न को लिखने का एक एक्सेप्टेंस बनाया। अब एक काम करते हैं, कभी कभी हमारे पास इस तरह के कैरेक्टर्स दिखाते हैं। तो ये कैरेक्टर आपको कैसा लग रहा है? नेगेटिव पॉजिटिव लग रहा है? हमें लग रहा है नेगेटिव, क्योंकि ये कुछ सोच रहा है और सोचने में सैडनेस दिख रहा है। लेकिन हमें तो पता है कि हमारा कैरेक्टर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और नेगेटिव अगर हो गया तो हीरोइज्म नहीं होगा उसमें। तो जाहिर सा बात है कि कुछ भी दिखा दे, ये दिखा दे, या आपको ये दिखा दे, ये हेज़ी पिक्चर है। इसमें भी आप अगर ध्यान से देखें तो कोई कैरेक्टर जो है जो बैठ के सोच रहा है ना, यू हैव टू फाइंड द इमेज। क्या अभी आपको लग रहा है ऐसा सोच रहा है? जैसा मैंने कहा वैसा सोच के देखिए। कैन यू फाइंड इट? कि कैरेक्टर को सामने बैठा हुआ ऐसे करके सोच रहा है, दिख रहा है आपको? आपको ये परसेप्शन बनाना पड़ेगा कि ये, इसको कहते हैं हेज़ी पिक्चर, ब्लर इमेज, जिसमें कि आपको समझना पड़ेगा क्या दिखाया जाए। कुछ और भी देख सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा बैठा हुआ तो ये सैड ही तो दिख रहा है, ये भी तो सैड दिख रहा है ना। तो जाहिर सी बात है अगर हमने सैड इमेज बना दिया तो हमारा सिलेक्शन तो होगा नहीं। तो क्या करें? हमें बनाना होगा पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव में हमें एज वही 20 ईयर्स, क्योंकि आप जिस एज में हैं 20-22 साल के एज में भी मूड पॉजिटिव, सेक्स में। अब आप में से मेजॉरिटी के दिमाग में रहता है कि सर हाउ कुड आई राइट पॉजिटिव मूड दो आई परसीव्ड द कैरेक्टर वॉज सैड। तो सैड आपका परसेप्शन भी तो हो सकता है, सैड आपका परसेप्शन भी तो हो सकता है। हो सकता है कि कैरेक्टर को कोई चैलेंज दिया गया हो
और चैलेंज को टेक्टफुली को सॉल्व करने की बात सोच रहा हूँ। सपोज़ आपका जो है कॉलेज में